Good morning, students. Now, this is the second lecture of the physics of light. In this, we will study about the mirrors and the rules for the formation of images by the mirror. First of all, you must know what is the meaning of the mirror. Mirror is the plain polished surface. Suppose you have taken a glass slit. This is a glass slit, thin glass slit, and you polish this side, one side. So from this side where you have not polished, जिधर आपने पॉलिश किया उसके अपोजिट साइड से आप देखेंगे, so you can observe the image on this material. This is called mirror. If you have taken a straight slit, thin plate of glass, so it will be called the plane mirror. That's mean mirror may be many types. One is plane mirror, second one is spherical mirror. First is plane mirror. Second is spherical mirror. And third one is parabolic mirror. What is plane mirror? Plane mirror you are seeing here. अगर आपने सीधे प्लेट स्ट्रेट प्लेट ली है बिल्कुल और उसमें एक साइड पॉलिश करी है तो ये आपकी प्लेन मिरर की तरह काम करेगी. अगर आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करना है या बनाना है तो एक कोई हालो ट्रांसपेरेंट स्फेयर लीजिए और उसका कोई पार्ट कट कर दीजिए. सपोज़ कीजिए ये कट कर लिया आपने, हम इसको बाकी को डिलीट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं. अब ये जो आपका पार्ट बचा, इस पार्ट पे अगर आप किसी तरफ पॉलिश करते हैं, इस साइड पॉलिश करें या इनर साइड पॉलिश करें, ये आपके स्फेरिकल मिरर के एग्जाम्पल्स हैं. That's mean spherical mirror is the part of any hollow sphere polished by any one side, inner side or outer side. So next one is parabolic mirror. These are the spherical mirror. Spherical mirror. And this is plane mirror. If you have taken a parabolic transparent substance like this, this is a parabola, and you have polished, this is not a part of a sphere. A sphere like this, parabola is not a part of a sphere. If you have polished inner side or outer side, so it will be called parabolic mirror. But you have to study in class 10th only plane mirror and spherical mirror. In the plane mirror, you can observe the virtual image of any substance, but it is laterally inverted. In spherical mirror, if you have polished the outer side, it will be called concave mirror. Concave mirror. While if inner side, so it will be called convex mirror. Convex mirror. So you have to write the definitions of plane mirror, concave mirror and convex mirror with the diagrams. Once again I am replying the convex mirror, concave and convex mirror. It is a part of a sphere polished
outer side, so it is called concave mirror. It is a part of sphere polished inner side, it will be called convex mirror. Now moving towards the formation of image by the plane mirror. Formation of image by plane mirror. Suppose this is your plane mirror, one side polish, and you have to form the diagram of formation of image of this point. So what we have to do, at least 2 rays from this point, कम से कम 2 रेजेस यहाँ से निकालनी हैं और जो कि मिरर पे पहुँचें. एक रे हम ये ले जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन. यू हैव टू यूज स्केल एंड पेंसिल. हेयर वी हैव टू ड्रा नॉर्मल. This ray will reflect with the same angle because according to the laws of reflection, angle of incidence and angle of reflection should be same. Ray will go this side. अब आप दूसरी रेज कहीं भी स्ट्राइक करा सकते हैं. यहाँ से इसको छोड़ करके जिस पॉइंट पे ये रे चल रही है उस रे को छोड़ करके दूसरे पाथ पे हम दूसरी रे को, सबसे इजी मेथड है जो स्ट्रेट ले जा रहे हैं. और जब स्ट्रेट ले जाएंगे तो ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगी और परपेंडिकुलरली ये रिटर्न करेगी उसी पाथ पे और रे उसी पाथ पे रिटर्न कर जाएगी लाइक दिस. कोई ज़रूरी नहीं है आपकी यही रे बनाएं, आप कहीं और भी बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी है. अब क्योंकि ये रे तो रिटर्न करके यूँ जाएगी और ये रे यूँ जा रही है, दोनों रेज बहुत दूर हो रही रिफ्लेक्शन के बाद, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और इस वजह से प्लेन मिरर जो है कभी भी रियल इमेज नहीं बना पाएगा. हमको क्या करना पड़ेगा, इन रेज को बैक साइड में बढ़ाना पड़ेगा. स्केल का यूज़ करेंगे आप. इसी तरह से इस रेस को भी हम बैक साइड में बढ़ाएंगे और ये आपका इमेज बन जाएगा. इमेज आपका जितनी डिस्टेंस मिरर से है, ये ऑब्जेक्ट है आपका और ये इमेज है. जितनी डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट की है उतने ही डिस्टेंस पे आपको बैक साइड में मिरर के इमेज बनेगा. इस तरह से आप किसी भी पॉइंट का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी आर्टिकल का इमेज प्लेन मिरर पे बना सकते हैं. और क्या दूसरा मेथड भी हो सकता है कि आप कोई रेज अगर यहाँ नहीं ले जाते, ये वाली रे, सपोज़ कीजिए एक रे आप यूँ ले जाते, यहाँ स्ट्राइक करते, तो फिर आपको यहाँ पे नॉर्मल फिर से बनाना पड़ता और इस रेस को फिर रिफ्लेक्ट करना पड़ता और फिर इस रे को भी पीछे बढ़ाना पड़ता. जो कि उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती जाके. तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ द इमेज बाय अ प्लेन मिरर. जो इमेज बनेगी प्लेन मिरर से स्टूडेंट्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो इरेक्ट होगी, इरेक्ट, वर्चुअल, लैटरली इन्वर्टेड, मीन्स अगर आपने एरो रखा है तो इसका इमेज एरो बनेगा. इरेक्ट है और सेम साइज बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा.
वर्चुअल बनेगा। लैटरली इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है? सपोज कीजिए अगर आपने Z को मिरर के सामने रखा है तो उसका इमेज इस तरह से बनेगा। लेफ़्ट राइट इन्वर्जन होगा, लेफ़्ट वाला राइट चला जाएगा, राइट वाला लेफ़्ट पे चला जाएगा। इसे लैटरली इन्वर्जन बोलते हैं। सपोज कीजिए वन मोर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। ये एरो आपने ऐसे रखा है तो इसका इमेज इस तरह से बनेगा। क्लियर हो रही बात? ये कैरेक्टरिस्टिक हैं आपकी स्टूडेंट्स, इरेक्ट, वर्चुअल, laterally inverted and same size of the object. Okay students, now moving towards the spherical mirror. Once again I am drawing the spherical mirror. This is a part of sphere and I have taken this part, polished outer side. As you know, a sphere has a center. The center of a sphere is this. This is indicated by C. अगर हम इस सेंटर को मिरर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपको डिफिनेशन बतानी पड़े सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो यू हैव टू राइट mirror is a curved mirror or spherical mirror is a part of any sphere. The center of that sphere is called center of curvature, and this is point A and point B. I have taken this part of mirror. This is a spherical path, but line joining straight A to B, this line is called aperture. Aperture. And the center of this path, that's mean A and B, ये जो यहाँ से लेके कर्व पाथ पे चल रहे हैं आप, इसका बिल्कुल बीचों बीच सेंटर ले लें। मीन्स यहाँ से यहाँ तक इक्वल आर्क हो, यहाँ से यहाँ तक इक्वल आर्क हो। दिस विल बी कॉल्ड P, दैट्स मीन पोल ऑफ द मिरर। अ लाइन पासिंग बिटवीन द सेंटर एंड पोल, दिस लाइन this will be called principal axis. बाकी चीज़ों को हम रब कर रहे हैं जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। Now you can see this is mirror and this is concave mirror because polished outside. Mirror is indicating by AB. AB curve, or you can say APB, like this. देखिए अपर्चर ये डिस्टेंस बोली जाएगी स्ट्रेट लाइन जो कि दोनों एंड को मिरर के कनेक्ट करेगी। अगर मिरर बहुत छोटा है, बहुत छोटा पार्ट लें अगर हम मिरर का, दिस इज A एंड दिस इज B, तो ये अपर्चर और मिरर बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएंगे और वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, ये स्फीयर की डिस्टेंस है, दैट्स मीन यू कैन से C to P और डिस्टेंस बिटवीन C, that's mean center of curvature,
curvature and pole is called radius of curvature. Radius of curvature. So हमने आपको कौन कौन से पॉइंट बताए? सबसे पहले तो हमने बताया आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपको नोट करना है डिफिनेशन और डायग्राम की हेल्प से। फिर इसके बाद अपर्चर, फिर इसके बाद पोल, फिर इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर और फाइनली प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब जो इसका हाफ पार्ट है, यानी सी और पी के बिल्कुल बीचों बीच में जो पार्ट आएगा उसे हम फोकस बोलेंगे, और उसकी डिस्टेंस जो होगी एफ और पी के बीच में उसे फोकल लेंथ बोलेंगे। फोकल लेंथ। So we have to write the definitions with the help of the diagram. What? Center of curvature, aperture, pole, radius of curvature, principal axis, focus and focal length. Okay students? Now the rules of formation of image by spherical mirrors. Rules of formation of image. Rule number 1. Before drawing the ray diagram, you have to use compass, scale. This is your concave mirror. ये आपको कंपास से बनाना है, कंपास की निडल रख के, और जो आपका पॉइंट होगा कंपास का वहाँ पे आप सी लिखेंगे, फिर लाइन को मिलाएंगे, यहाँ पे पी लिखेंगे, और ये डिस्टेंस आप अपनी कॉपी में अच्छे से अगर बनाना चाहते हैं तो मेज़र करके कंपास को खोलें 4 इंचेस, तो आसानी रहेगी आपको। यहाँ पे आप मार्क करेंगे F, focus. First rule, a ray parallel to the principal axis move from the focus after the reflection. कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। पैरेलल का मीन्स है कि रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हम ये रे ले रहे हैं, ये रे लाए पैरेलल, ये इंसिडेंट रे है और ये स्ट्राइक किया। अब हमको ये पता होना चाहिए कि ये रे कहाँ से जाएगी, तो आप सही डायग्राम स्केल को आप फोकस से लगाएंगे और ये जाएगी। दिस इज द फर्स्ट रूल। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव फ्रॉम फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर 2, a ray moving from focus will be parallel after the reflection. अगर कोई रे फोकस से होके जा रही है मिरर तक, ये पहुंची, इट विल बी पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। क्लियर? दिस इज रूल नंबर 1। पैरेलल रे, जो रे पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। पैरेलल का मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल बराबर से ले जाएंगे, इक्वी डिस्टेंस से। फोकस से रे ले जाएंगे, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएंगे। और रूल नंबर 3, a ray passing from the center of curvature return back in the same path after the reflection. अगर कोई रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके मिरर तक जा रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पे वापस आएगी, यानी यूं गई है तो यूं ही वापस आएगी, उसी पाथ से वापस आएगी। रूल नंबर 1 फिर से हम बता रहे हैं आपको, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes from focus after the reflection. Rule number 2, a ray passing from focus to the mirror will be parallel after the reflection. Rule number 3, a ray passes through the center of curvature, return back in the same path after the reflection. By using any two rules, you can form the image. बाई यूजिंग एनी टू रूल, इनमें से 3 रूल में से और भी एक रूल आप बना सकते थे कि अगर कोई रे पोल पे आती है, पोल पे डायरेक्ट पहुंच रही है, सो इट विल फॉर्म द सेम एंगल लाइक दिस, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से जाएगी। ये रूल नंबर 4 हो सकता है आपका। ये टफ है क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ पे एंगल बनाना पड़ेगा और ये रूल को बहुत रेयर केस हो तभी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये तो आप सीधी लाइन बना सकते हैं और फोकस से पास करा सकते हैं, फोकस से ले जाके पैरेलल बना सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली बिल्कुल इजी है, चाहे जहाँ पे स्ट्राइक करिए वापस ले जाइए। लेकिन इसमें अगर आपने एंगल लाए फिर उसी एंगल से आपको रे को निकालना पड़ेगा और फिर आपको ये कंपास या प्रोटेक्टर का यूज़ करके ही बनाना पड़ेगा। और इसमें अगर ज़रा भी मिस्टेक होगी तो इमेज की पोजीशन लोकेशन गड़बड़ कर जाएगी। सो हमें ये रूल सीखना है। अब कल हम इसकी रूल का यूज़ करके इमेजेस बनाएंगे। मैंने क्वेश्चंस आपको भेजे हुए हैं ऑलरेडी, आप उसके आंसर्स करें। कल इस वीडियो को आप अच्छे से देखने के बाद डाउट क्लासेस में अपने डाउट पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।